Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. I greet you all in the name of the Lord Jesus Savior Christ. और मैं आप सभी को अभिनंदन करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। I thank the Lord for this beautiful day. और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि इस सुंदर दिन के लिए। How many of you believe that this is the day that the Lord has made? और आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि ये दिन जो है प्रभु ने बनाया है? Do you believe? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Do you believe? क्या आप विश्वास करते हैं? Amen. Hallelujah. आमेन आमेन Hallelujah. आमेन Hallelujah. I आमेन। bring greetings behalf of our national executives and our national head. और हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की ओर से और नेशनल हेड की ओर से आप सभी का May the अभिनंदन करता Lord हूँ bless you all. और प्रभु आप सभी को आशीषित करने पाए। Praise the Lord. हालेलुया। As everybody knows, today is a Palm Sunday. और जैसे कि हर कोई जानता है कि आज पाम संडे है, You know what खजूर is, इतवार है। you know, Palm Sunday means throughout the world, people celebrate and they worship the Lord. और खजूर इतवार को हर एक संसार में हर एक जगह बनाते हैं और वो खजूर के पत्ते को लेकर उसे बनाते हैं। Because today is a day where all the world who are Christian, they recognize that Jesus is the King. और ये समय है जब पूरे संसार के लोग मिलकर ये मानते हैं कि प्रभु यीशु ही राजा है। And this is the day where God, Jesus, revealed himself in action as a king. और यही समय है जब प्रभु यीशु ने अपने कार्य अनुसार दिखाया कि वही राजा है। Praise the Lord. हालेलुया। There are a lot of incidents was going on. और बहुत से कार्य जो थे वो चल रहे थे। The Bible says, और बाइबल कहती है Jesus said to his disciple, bring donkey for me. और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मेरे लिए गधा लेकर आ। And Jesus said, I'm not here for war. और प्रभु ने कहा कि मैं यहाँ पे किसी युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। Because in all the Old Testament, और क्योंकि पुराने नियम में if anybody take a horse and take a ride, और अगर कोई भी किसी घोड़े को लेकर उस पे सवारी करता if they है, ride on the horse, अगर वो घोड़े पे सवारी करता it है, means he is ready to have a war. और इसका अर्थ ये होता है कि वो युद्ध करने के लिए तैयार But है। if anyone comes in a donkey, अगर कोई गधे पर बैठकर आता है, and the Bible says और बाइबल कहती है the donkey represent peace. और जो वो गधा है वो शांति को दर्शाता And है। this morning, और आज की the सुबह Prince of Peace is here. और वो राजकुमार शांति का वो यहाँ पर है। Hallelujah. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। Jesus didn't come in a horse. और जो यीशु है वो घोड़े पर नहीं आया। He was not sitting on the horse. और वो घोड़े पर नहीं बैठा हुआ He था। was sitting on the donkey. और वो गधे पर बैठा हुआ था। And this morning, और आज की सुबह he is here with his donkey. और वो आज अपने गधे के साथ यहाँ पर And आया the है। donkey is peace. और वो गधा जो है वो शांति है। And I could see, और वो मैं देख पा रहा हूँ while we worshiping the Lord, और हम प्रभु की आराधना क्यों करते हैं that peace was controlling your heart. और वो जो शांति है वो आपके हृदय को चला रही है। Hallelujah. आमेन। And I saw the light of peace और मैंने उस शांति की ज्योति को देखा है came into your heart. और वो आपके हृदय के ऊपर आई है। Hallelujah. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। So this morning you have a peace. और आज की सुबह आपके जीवन में वो शांति है। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. And what does this peace do? और वो शांति क्या करती है? This peace और जो ये saves शांति your है, life. वो आपके जीवन को बचाती है। Hallelujah. आमेन। Am I right? और क्या मैं सही बोल रहा हूँ? You know people why commit suicide? और आपको पता है क्यों लोग आत्महत्या कर लेते हैं? 90% of case study says people commit suicide because they don't have peace. और 90% ऐसे दर्शाया जाता है कि लोग आत्महत्या इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनके जीवन में शांति नहीं होती। 90% of this world, the people of this world, और 90% इस दुनिया के लोग when they sleep at night, और जब वे रात में सोते हैं they don't sleep with peace. और वो शांति के साथ नहीं सोते। 90% of this world, और 90% लोग इस संसार के they always think about what is going to happen in their life. और वो सोते रहते कि उनके जीवन में अब क्या होने जा रहा What will है happen on next day? और अगले दिन उनके जीवन में क्या होगा। And that is why Jesus represented himself as a Prince of Peace.
और इसलिए प्रभु यीशु ने अपने आप को राजकुमार, शांति का राजकुमार करके दर्शाया And the है। Bible says when he was ascending to the heaven, और बाइबल बताते हैं जब वे स्वर्ग की ओर उठा लिया गया Jesus said, और यीशु ने कहा, I give my peace to you. मैं अपनी शांति को तुम्हें देता हूँ। Hallelujah. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। This morning you have peace of Jesus. और आज की सुबह आपकी शांति, वो प्रभु यीशु की शांति आपके ऊपर है। And this peace और ये will शांति save your life. अब आपके जीवन को बचा लेगी। It will save your problems. अब आपकी परेशानी को बचा It will लेगी। save you from your disease. अब आपको आपकी बीमारी से बचा It will लेगी। save you from your tension. अब आपके परेशानी से It आपको will बचा save you लेगी। from your anxiety. अब आपके एंजाइटी से आपको बचा Because लेगी। this peace has power. और क्योंकि इस शांति के पास वो सामर्थ है, It can break all the yokes. और वो हर एक बंधन को तोड़ सकती है। Because this peace is Jesus. और क्योंकि वह शांति यीशु है। Hallelujah. आमेन। This peace is Jesus. ये शांति जो है वो यीशु है, And you have that Jesus. और आपके पास वो यीशु है। हालेलुया, Praise the Lord. आमेन, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. And also the Bible says और बाइबल कहती है all the disciples are worshipping. और हर एक चेले उसकी आराधना कर रहे थे। And the king was like drawing on the top of the donkey. और जो वो राजा था वह उस गधे के ऊपर बैठकर आ रहा था। Even some of the people they have jealous. और बहुत से लोग उससे जलन रख रहे थे। Oh gee, why they are worshipping Jesus? और वो ये सोच रहे थे कि वे प्रभु की आराधना क्यों कर रहे हैं। Some of them came and they said, please shut your mouth. और लोग आके कह रहे थे कि तुम अपने मुंह को बंद कर लो Don't worship this Jesus. और इस यीशु की आराधना मत करो। And Jesus said, don't stop them. और प्रभु यीशु ने कहा उनको रोको मत, Don't stop them. और उनको रोको मत। If they will stop, अगर वो रुक जाएंगे these mountains and birds and trees will start worshipping और me. ये पहाड़, ये चिड़िया, ये संसार की आराधना करना शुरू कर देगा। Hallelujah. आमेन, Praise the Lord. हालेलुया। So this was the triumphal entry of Jesus into the Jerusalem. और यरूशलेम के अंदर जब प्रभु आ जयवंत। रहा था तब ये परिस्थिति एक आई। जयवंत एक कदमों को प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर रख रहा था. Hallelujah. आमेन, Praise the Lord. हालेलुया। It was a triumphal entry. और वो एक जयवंत उसके एंट्री थी। And after this, exact from this day, on 5th day, he has to die. और उस दिन से लेके 5वें दिन में उसको मरना था। He was not crying. और वे उस बात को लेके रो The नहीं Bible रहा says, था। though he was crying, और बाइबल कहती है अगर वो रो भी रहा था though he तो, was crying, और वो रो रहा था, why he was crying? और वो क्यों रो रहा था? Because for you and me. और वो सिर्फ आपके और मेरे लिए रो रहा He was था। crying for the people, those who are lost. और वो उन लोगों के लिए रो रहा था जो खो गए He हैं। was not crying for himself. और वो अपने आप के लिए नहीं रो रहा था। He was not crying for his suffering. और वो अपनी पीड़ा के लिए नहीं रो रहा था। Because he is very happy to die for you. और वो बहुत आनंदित था आपके लिए मरने के लिए। Praise the Lord. हालेलुया। He is very happy. और वो बहुत आनंदित था। The day when he was born, he knows that one day he has to die for you. और वो जिस दिन पैदा हुआ वो जानता था कि एक दिन उसे मरना है। Think about it. और आप उसके बारे में सोच कर The day देखिए। when you born and you know the death date, what will happen? और आप जिस दिन पैदा हुए और आप जानते हैं आपके जीवन में मृत्यु आने वाली है। On your 5th birthday, mother comes, son, you will die. अब 5वें साल में आपको आके आपकी माता कह रही है कि बेटा अब तुम मरने वाले हो। On your 10th birthday, mother comes and says, son, you will die one day. और आप 10 साल के अगर आपकी माता के कह रही है कि आप मरने वाले Now हो। at the age of 30, when Jesus was, and somebody say, God says, oh son, after 3.5 years, you have to die. और 30 साल का जब प्रभु यीशु और उससे लोगों ने कहा कि 3.5 साल बाद तुम मरने वाले हो। How will you feel? और आपको कैसा महसूस होगा? Will you be happy? आप खुश होंगे? Will you be able to sleep? क्या आप सो पाएंगे? Huh? You'll say, hey, wow, let's do party. और Huh? आप सब ऐसा सोचेंगे आइए चलो हम सब मिलके पार्टी करते हैं। Nobody will do that. और कोई भी ऐसा नहीं करेगा। But look at Jesus. और आप यीशु की ओर देखिए, He was very happy. और वो बहुत आनंदित था। Somebody was mocking at him. और कोई उसके पास चलकर आया Somebody was mocking at him. और कोई उसको ताड़ना दे रहा था। Somebody was saying, hey, look at it, he's not a Jesus, he's not a God. और वो कह रहे थे कि देख ये यीशु नहीं है, देखो He's not a God. और वो प्रभु नहीं है। Why you are worshipping him? और तुम उसकी क्यों आराधना कर रहे हो? He was not crying. और वो रो नहीं रहा था इस बात को He लेकर। was happy. He was Oh, driving on the donkey. और वो बहुत खुश था और वो गधे पर He चल was रहा also था। rejoicing. और वो बहुत आनंद बना रहा था। You know why?
और आपको पता है क्यों? Because he loves you. और क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। Hallelujah. He आमेन। loves you. और वह आपसे बेहद प्रेम करता है। He loves you. और वो आपसे बेहद प्रेम करता He है। loves you. और वो आपसे बेहद Come प्रेम on, करता tell है। yourself that Jesus loves me. और आप अपने आप से कहिए, प्रभु मेरे से प्रेम Jesus करता loves है। me. प्रभु मेरे से प्रेम करता है। Jesus loves me. प्रभु मेरे से प्रेम करता है। You know, even on the Calvary cross, और वो क्रूस में, वो कलवरी के क्रूस में भी प्रभु, he was praying for others. और वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर Father, रहा था। forgive them. अब प्रभु आप इन्हें क्षमा कीजिए। They don't know what they are doing. और वो ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। Will you able to do like this? और क्या आप ऐसा कर पाते? Somebody is like just ruining your life. और आप अपने जीवन को नष्ट Somebody कर has ruined your life. और किसी ने आपके जीवन को नष्ट कर दिया होगा। Somebody has taken your money. और किसी ने आपके पैसे ले लिए होंगे। Someone has just stolen your things. और किसी ने आपकी चीजों को चुरा लिया If होगा। somebody has slapped you, और किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया होगा। somebody has come and spoke against you. और किसी ने आपके विरुद्ध कुछ बोला होगा। Will you say that, Lord, you forgive them? और क्या आप प्रभु से ऐसा कहेंगे कि प्रभु आप इन्हें क्षमा कर दीजिए? Huh? You won't be able to say. और आप ऐसा नहीं कह पाएंगे। You can't say that. और आप ऐसा नहीं कह पाएंगे। You know why? आपको पता है क्यों? Because man has an attitude. और एक इंसान के अंदर एक घमंड होता You know है। what attitude it is? और आपको पता है वो घमंड किस प्रकार का होता What है? you will do for me, I will do it for you. और जो तुम मेरे लिए करोगे मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा। But God's character is something different. और प्रभु का स्वभाव कुछ अलग तरीके का था। God knows that और प्रभु ये जानता था, these people who are worshipping me, और जो लोग मेरी आराधना कर रहे the हैं, people those who are saying Hosanna, Hosanna, the King of Kings, और जो लोग कह रहे हैं होसाना होसाना राजाओं के राजा, they are the same people who's going to put me on the cross. और वही लोग हैं जो मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाले हैं। Maybe today their action is something different. और शायद अभी उनका कार्य कुछ अलग है। So their action is just to impress me. और उनका जो कार्य है वो सिर्फ मुझे प्रसन्न करने के Maybe लिए they है। want something from me. और वो शायद उन्हें मेरे से कुछ चाहिए। God knows that. और प्रभु ये जानता है। आपको पता है जो लोग आराधना कर रहे थे उन्होंने एक दिन कहा इसे क्रूस पे चढ़ाओ। हाँ? कई बार God looks how you are worshiping him. और प्रभु जानता है, आप प्रभु देखता है आप उसकी आराधना कैसे करते हैं। You cannot act before the Lord. और आप प्रभु के आगे आके आप उसके एक्ट नहीं कर सकते, दिखाकर नहीं दिखा सकते कि You cannot be a good actor और आप एक अभिनेत्री नहीं बन सकते उसके because सामने, he is the master. क्योंकि वो एक मास्टर है। He knows who's acting and who is just really worshipping me. और वो जानता है कि कौन सच्चाई से उसकी आराधना कर रहा है और कौन नाटक कर रहा है। He knows who in which motive, in which emotions or in which desires he is here. और किस भावनाओं के साथ, किस चाहत के साथ आप प्रभु के सम्मुख है। Hallelujah. He knows that. और प्रभु वो जानता He knows है। your emotions. और वो आपके भावनाओं को जानता Some है। people worship the Lord because they want something from God. और कुछ लोग प्रभु की आराधना इसलिए करते हैं उन्हें प्रभु से कुछ चाहिए होता है। They want something from God. और उन्हें प्रभु से कुछ चाहिए I होता want है। money. और मुझे पैसे चाहिए। I want this. और मुझे ये सामान They चाहिए। worship the Lord. और इसलिए वो प्रभु की आराधना करते But हैं। some people, पर कुछ लोग, oh God, even if I don't have, I will worship you. और प्रभु मेरे पास कुछ नहीं भी है मैं तब भी तेरे लिए आराधना Even if करता I हूँ। don't have money, I will worship you. और मेरे पास पैसे नहीं है तब भी मैं तेरे लिए आराधना करता Even हूँ। if I don't have, if even I'm suffering with sickness, I will worship you. और चाहे मैं बीमारी से पीड़ित हूँ तब भी मैं तेरे लिए आराधना करता हूँ। Praise the Lord. हालेलुया। This morning, God knows your motive. और आज की सुबह प्रभु जानता है आप किस मकसद के God साथ knows यहाँ पर why आए you are हैं। into this temple. और प्रभु जानता है आप क्यों इस मंदिर के अंदर हैं। Hallelujah. आमेन। I pray that may the Lord heal your life. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन को चंगा करे। May the Lord knows your desire. और प्रभु आपकी चाहत को जानता The है। right desire, He knows you. और वो आपकी सही चाहत को जानता है। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. Let's turn our Amen. Bible, book of Matthew chapter 21 verse 8. और हम निकाल लेंगे मत्ती उसका 21वां अध्याय उसका 8वां वचन। Turn your Bible. आइए हम निकाल लेंगे। बाइबल क्या कहता है? निकालिए, फटाफट निकालिए. तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने, मैं चाहता हूँ पब्लिक में लोगों में से एक जन पढ़े, बाइबल पढ़े. Praise the Lord. यहां पर यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे हैं
और हम यहां पे देखते हैं लोग डालियों को काटकर, कपड़ों को काटकर क्या कर रहे हैं? मार्ग में बिछा रहे। ध्यान से सुनिए, क्या कर रहे हैं? कपड़ों को मार्ग डाल रहे हैं, डालियों को काटकर क्या कर रहे हैं? मार्ग में बिछा रहे हैं। और बाइबल कहता है जिनको जो मिला उन पेड़ को तोड़कर, पत्तों को तोड़कर उन्होंने रास्ते में बिछा दिए। और जिनके पास कुछ भी नहीं था उन्होंने क्या किया? अपना बहुमूल्य वस्त्र को भी क्या कर दिया? यीशु के मार्ग में बिछा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आराधना आप और मैं कैसे कर रहे हैं इस वचन के द्वारा दिखाई दे रहा है। वचन कहता है लोग आराधना करना चाहते थे, लोग आराधना करना चाहते थे यीशु की। लोग चाहते थे कि हम इस यीशु को हम बहुत ही आनंद के साथ यरूशलेम के अंदर लेके जाए। उनको समझ नहीं आ रहा था हम कैसे आराधना करें। बट वॉट एवर दे हैड इट, वॉट एवर दे हैड इट, they just kept before the Lord. और उन्होंने उसको प्रभु के सम्मुख रख दिया। जो कुछ उनके पास था। Praise the Lord. यो पुराने नियम में किसी को जब वस्त्र मिलता था, जब वो लोग बाहर जाते थे, वो एक वस्त्र पहनते थे और वो वस्त्र दिखाता था वो इंसान कितना बड़ा है। Praise the Lord. आज आपको पता है हर एक वस्त्र दिखाता है कि कौन कितना पैसा वाला है कि नहीं? किसके पास कितना पैसा है। अगर अच्छा महंगा पोलो ब्रांड का पहने, बहुत पैसा है, ये शर्ट बहुत महंगा है। अगर यही सस्ता वाला पहने या कुछ भी पहना, अरे ये पता है कैसा शर्ट पहना हुआ, कहाँ कितने का, 250-300 का। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ आ रहा है? उन दिनों में जो वस्त्र होता था वो दर्शाता था आपकी परिस्थिति क्या है। अंधों का एक वस्त्र होता था, अगर एक भिखारी का वस्त्र अलग होता था। अगर आप कोढ़ी है तो कोढ़ी का वस्त्र भी अलग होता था। अगर चोर है, चोर का वस्त्र भी अलग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज चोर का कपड़ा कैसा होता है? हैं? अच्छा होता है चोर का वस्त्र। जेल में देखा कभी चोर का वस्त्र? जेल में चोर का वस्त्र देखा आपने? मैं आज ये और इन तीनों से बहुत सवाल पूछने वाला हूं और पूछूंगा कि ये प्रचार सुन के क्या बोल रहे हैं। राइट? इन लोगों से बहुत पूछने वाला, आप लोगों से पूछने वाला हूं। चोर कैसा कपड़ा चोर जब जेल में जाता है कपड़ा कैसे पहनता है? देखा आपने कभी? हैं? किसने बोला व्हाइट मिलता है? यहां देखो रशिता बहन, वो चोर नहीं है। वो आप जेल गई हो? अब वो जेल नहीं गई, उनको नहीं पता। मुझे देखो, आपको पता है जेल में कपड़ा कैसे पहनते हैं? नहीं पता। जेल का वस्त्र भी अलग होता है कि नहीं? राइट? अलग होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। डॉक्टर का कपड़ा कैसा होता है? मुंशन डॉक्टर का कपड़ा कैसा होता है? व्हाइट होता है। कैसा होता है? कोट होता है या पूरा कपड़ा ही व्हाइट होता है? कोट होता है, एक ऊपर एक कोट। जैसे ही वो कोट पहन ले तो क्या पता चल जाता है ये डॉक्टर है। वकील का कपड़ा क्या होता है? ब्लैक कोट। राइट? हम सबको पता है हर एक वस्त्र। अगर एक लड़की लहंगा चोली पहनकर अगर रास्ते में चल कर रही है तो हम क्या सोचते हैं? हाँ, जैसे ही लहंगा लगता कहीं शादी पे जा रहे हैं। अगर एक लड़की नाइटी ड्रेस पहन के आ जाए, नाइटी पहन ले, तो क्या पता चलता है? अभी भी सो के हो, घर से पता नहीं कहीं जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। मैं समझ रहे हैं उन दिनों में भी वस्त्र बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा हुआ बर्तिमेयू जब अंधा था उसके ऊपर एक वस्त्र था और वो वस्त्र दर्शाता था वो अंधा व्यक्ति है। और जैसे ही वो यीशु के पास आया उसने क्या किया? अपने वस्त्र को उठाकर फेंक कर वो यीशु के पास आ गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो दोबारा उस कपड़े को पहने, क्योंकि वो कपड़ा दोबारा पहनने का मतलब है वो अंधाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मान लो या मैन का है या धर्मेंद्र भाई है, अगर उनको कैदी का कपड़ा पहना दे और दोबारा वो कैदी का कपड़ा पहने, इसका मतलब क्या है? उनकी सजा माफ हो गई या नहीं हुई? नहीं हुआ। क्यों? इसका मतलब अभी भी वो कैदी है। सो आज
बाइबल में लिखा हुआ है जितना भी उनका पहचान था, एक वस्त्र एक इंसान का क्या है? क्या है? एक वस्त्र एक इंसान का पहचान है। और एक वस्त्र एक इंसान का पहचान के साथ साथ वो वस्त्र उसकी रक्षा करता है। बिलीव करते हो आप? एक वस्त्र आपकी रक्षा करता है? करता है कि नहीं करता? एक वस्त्र एक इंसान की क्या करता है? रक्षा करता है। और एक वस्त्र दिखाता है इसकी कितनी हैसियत है। एक वस्त्र दिखाता है वो व्यक्ति कितना अमीर है, गरीब है, या वो व्यक्ति कितना अपने आप को अपने उसका परिस्थिति कैसा है। एक कपड़ा दिखाता है। एक भिखारी अगर कोट पैंट शर्ट मेरी तरह मैं आकर भीख मांगू तो कैसा लगेगा? आप मुझे पैसा दोगे? क्यों नहीं दोगे? हैं? क्या बोलोगे? अरे इतना अच्छा कपड़ा पहनकर आप भीख मांग रहे हो? हैं? काम कर ले, हाथ पांव है। अगर वही एक व्यक्ति, मैं अगर फटा कपड़ा, गंदा बाल ऐसे करके पूरा मट्टी मेरे ऊपर डालकर अगर मैं भीख मांगू तो आप क्या बोलोगे? अरे बेचारा 10 रुपए। सी सो एक कपड़ा आपके क्या दिखाता है? आपका स्वभाव, आपके हैसियत को दिखाता है, आपके जीवन को दिखाता है। मैं आज से जो कुछ 4 भाइयों का नाम ले रहा हूं, प्रकाश ब्रदर, अर्जुन ब्रदर और पॉल ब्रदर, ये सब आज के बाद आगे बैठेंगे 4 लाइन पे। कम ऑन, कम 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 कम, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। पीछे बैठना अच्छा नहीं लगता मुझे, राइट? आपसे आगे आके बैठिए आप। ये 4 जन आगे बैठ जाइए। इनसे भी मुझे सवाल बहुत पूछने हैं, राइट? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सो लोगों ने परमेश्वर की करी, प्रभु यीशु की आराधना करा, अपने हर एक चीजों को प्रभु के सामने रख दिया। सी एक चीज यू हैव टू अंडरस्टैंड, और आपको एक चीज समझनी होगी, एवरी वर्शिप हैज अ कॉस्ट। और हर एक आराधना की एक कीमत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Every worship what you're doing, it has a cost. और हर एक आराधना की कीमत है जो भी आप करते And हैं। that cost has to be paid by you. और वो कीमत आपके द्वारा चुकानी है। God will never pay any cost to worship Him. और अब प्रभु आपकी कीमत को नहीं चुकाएगा कि आप उसकी आराधना करें। Praise the Lord. हालेलुया। He will not pay, oh come son, I'm going to give you money. और वो ऐसे नहीं करेगा कि आ मेरे बेटे मेरे पास आ और मैं तुझे पैसे दूंगा। Come and worship me, then I will bless you. और तू मेरी आके आराधना कर कि मैं तुझे आशीषित करूं। Before that you have to understand. और उससे पहले आपको समझना होगा, If you want to worship the Lord, अगर आपको प्रभु की आराधना करनी you है, need to give something. और आपको उसे कुछ देना पड़ेगा। Praise the Lord. हालेलुया। In the Bible, और बाइबल में those who worship the Lord, और जो प्रभु की आराधना करते they हैं, gave something to the Lord. और वो प्रभु को कुछ देते हैं। In the Old Testament, और पुराने नियम में God built a temple. और प्रभु ने एक मंदिर बनाया। And God said, और प्रभु ने कहा, if you want to enter into the most holy place, अगर तुम्हें सबसे पवित्र स्थान में आना है, if you want to even second place, अगर तुझे दूसरे स्थान में भी on आना the है, first place I have built an altar, और मैंने पहले स्थान में एक वेदी तैयार की you है, have to come, और तुम्हें आना you होगा, have to sacrifice something और तुझे एक चीज को बलिदान करना and होगा, worship me. और मेरी आराधना करनी होगी। Praise the Lord. हालेलुया। In the Bible it is written, और बाइबल में ऐसा लिखा है, when Jesus was talking to the Samaritan woman, और समारी स्त्री से जब प्रभु बात कर रहा था, she was telling about the temple. और वो एक मंदिर के बारे में बोल She रहा said, था, Jesus, और उसने कहा, यीशु, I cannot go to the temple और मैं मंदिर में नहीं जा सकती, because Moses said, और क्योंकि मूसा ने कहा है, if I have to worship you, अगर मुझे तेरी आराधना करनी you have होगी, to come to the temple. और तुझे मंदिर में आना You होगा, have to sacrifice something. और तुझे कुछ बलिदान चढ़ाना Then only होगा, that will be a true worship. और तभी वो एक सच्ची आराधना कहलाएगी। But when Jesus entered into the Jerusalem, और जब प्रभु यीशु यरूशलेम के अंदर आया, the meaning of worship was changed. और उनकी आराधना का तरीका बदल गया, Because God is looking for the true worshipper. और क्योंकि प्रभु सच्चे आराधक को ढूंढ And रहा the था, true worshipper is the और जो सच्चा आराधक जो है, one who gives. और वो है जो देता है प्रभु को। Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन, Amen. आमेन।
Don't hold anything for you. और कोई भी चीज अपने आप के लिए पकड़ कर मत रखिए, पकड़ के मत रखिए. Give everything for Jesus. और सब कुछ आप प्रभु यीशु के लिए दे That's दीजिए. what I said. Worship involves 3 portions. और इसलिए मैंने कहा कि आराधना में 3 भाग जुड़ते हैं. Worship involves your body. और सबसे पहला वो आपका शरीर, Your worship involves your body. और जो आपकी आराधना है वो आपके शरीर को जोड़ती है. Worship starts from your body. और जो आराधना है वो आपके शरीर द्वारा शुरुआत When होती you है. come to the church, और जब आप कलीसिया में आते हैं, prepare your body. अपने आप अपने शरीर को तैयार कर आइए, Wash your body. अपने शरीर को धोकर आइए, Dress up well. अच्छे से तैयार Come होकर, to the Lord. और तब प्रभु की ओर आइए. Don't come like a beggar. और एक भिखारी के समान मत आइए, Don't wear dirty dress. और गंदे कपड़े पहनकर मत आइए. Be smart in the presence of और God. प्रभु के सम्मुख समझदार बनिए. When you worship the Lord, और जब आप प्रभु की आराधना करेंगे worship like Him. और उसके समान आराधना Worship like a करिए, child of God. और एक प्रभु की संतान समान आराधना You're not here करिए. to worship a beggar God. और एक आप भिखारी परमेश्वर की आराधना करने नहीं आए हैं, You're not here to worship a God who is small. और उस परमेश्वर की आराधना करने नहीं आए हैं जो छोटा है. You're worshiping Almighty God. और आप वो सर्वशक्तिमान प्रभु की आराधना You're करने worshiping आए the हैं. one who has created heaven and earth. और आप उस परमेश्वर की आराधना करने आए हैं जिसने स्वर्ग और इस संसार को You're रचा है. worshiping the Lord who has the power and authority. और उस प्रभु की आराधना करने आए हैं जिसके पास अधिकार और सामर्थ है. You are not worshiping a dead God. और आप एक मरे हुए परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं. Your God is alive. और आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. Your God is alive. और आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर Your है. God is with you. और वो परमेश्वर आपके साथ है. Your God is holding your hand. और वो परमेश्वर ने आपके हाथों को पकड़े हुए You're रखा है. worshiping that Lord who can hear your prayers. और उस परमेश्वर की आप आराधना करें जो आपकी प्रार्थना को सुन सकता है. Praise the Lord. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. When you worship the Lord, और जब आप प्रभु की आराधना करते don't हैं, hold anything. और आप किसी भी चीज को पकड़ के मत रखिए, Don't sit like a statue. और एक मूर्ति के समान मत बैठिए, Don't sit like in a dead body. और एक मरे हुए शरीर के समान मत बैठिए. Pastor, I don't know this song. और प्रभु पास्टर मुझे ये गीत नहीं पता है. Go home and learn the song. और घर जाकर इस गीत को सीखिए, Go home, read the Bible. और जाकर अपने घर पे बाइबल को Pastor, पढ़िए. I don't know where is this song. और पास्टर मुझे नहीं पता ये गीत कहाँ से है. Go and search it in YouTube. और जाकर YouTube में उस गाने को When you ढूंढिए. worship the Lord, और जब आप प्रभु की आराधना करेंगे, don't sit like a dumb. और एक मूर्ख के समान मत बैठे रहिए. Oh, I don't know anything. और मुझे कुछ पता ही नहीं है. Praise the Lord. हालेलुया. Don't you know how to eat? आपको पता नहीं है कैसे खाना खाया Don't you जाता know है. how to eat? आपको पता नहीं खाना कैसे खाया जाता है. Yes or not? हाँ या नहीं, आपको खाना पता है कैसे आपको खाना पता खाया खाना जाता कैसे है. खाते? कैसे खाते खाना? हाथों से. हाँ? हम पाँव से खाते? नहीं ना? हमें पता है ना खाना कैसे खाते हैं, पर हम कैसे बोल सकते हैं हमें आराधना नहीं आता? आराधना गीत नहीं आता. पास्टर मुंह, मैं किसी बहनों को देख रहा हूं, आप लोग को मैं देख रहा हूं, मुंह खुलता ही नहीं है. कुछ भाइयों का मुंह नहीं खुलता. हिंदी जानते फिर भी मुंह नहीं खुलेगा. एक बहाना रहता हम तो अभी अनपढ़ हैं, हमें तो पता ही नहीं है बाइबल कैसे पढ़ना है. पर उनसे दुनिया भर की बातें पूछवा लो, पड़ोस की बातें पूछवा लो, अमिताभ बच्चन के बारे में पूछवा लो, सारी बातें उनको आएगा. लर्न. मैंने कहा आपका आराधना को क्या करना है? यू नीड टू पे समथिंग. और आपको उसकी कुछ कीमत चुकानी होगी. यू नीड टू पे द कॉस्ट. और आपको उसके लिए कीमत देना होगा. गाना नहीं आता, सीखो. पे द कॉस्ट. और आपको उसको गीत को गाना नहीं आता, आपको सीखना होगा. इसके लिए आपको उसको कीमत चुकानी टेक होगी. योर टाइम. और अपने समय को लीजिए. पे योर टाइम. और अपने समय को लीजिए. पे योर स्लीप. और पे योर स्लीप. और अपने जो आप सोते हैं उसको समय दीजिए. सैक्रिफाइस योर स्लीप. अपने बलिदान कीजिए उस सोने को. और बस प्रार्थना करता हूँ ऐसे. कुछ भाई को देखा, मैं भी सो रहे थे बैठकर, प्रार्थना कर, नाइट ड्यूटी करके ऐसे हो गया. धर्मेंद्र जी की मम्मी जी मुझे जगाना पड़ता हर हफ्ते. कौन चर्च आते तो सोकर आइए. चर्च सुलाने वाला नहीं है जगह. बहुत मुझको को मजा आता वो एसी वाला जगह.
जैसे एसी ऑन हो गया बस वहीं बैठेंगे, अड्डा बना लिया, वहां से नहीं उठूंगा मैं, वो मेरा अड्डा है। कोई और आके बैठ जाए गलती से, हो गया वहां पे भूकंप आ जाएगा, वो जगह मेरा, ये मैंने बुक कर रखा है। यहां पे भी तो कभी आ जाओ आराधना करने के लिए। कहां जाओ? यहां जाओ। वो बच्चा कहां गया? वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, आराधना करने के लिए यहां रहती है। यहां आ जाओ। रशिता बहन कहां ना आराधना में, कोने में नहीं बैठना, यहां आ जाओ, नाचो आकर यहां पे। हुनचुन कहां है? हाँ, जगह में बैठकर आराधना करने के लिए। आराधना आपको कदम उठाना है, आपको कुछ मूल चुकाना है। मूल कैसे चुकेगा? आपके शरीर के द्वारा। कम प्रभु की आराधना क्या कर रहे हैं? कुर्सी पकड़ के मत बैठिए, ये कुर्सी आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। ये कुर्सी क्या नहीं करेगा? कहां नहीं लेके जाएगा? ये कुर्सी यहीं रहेगा, आप भी यहीं रह जाओगे। पता चला मैं हम सब गायब हो गए, कहां गया पास्टर पता नहीं, आराधना कर रहा था महिमा के साथ, मैं चले गया ऊपर, और महिमा की मम्मी महिमा को ढूंढ रही है। आराधना जब करते हैं, चुकाओ, तकाओ अपने आप को, खड़े हो जाओ। अभी पूछो कल क्या मूवी रिलीज हुआ? देखो धुरंधर 2। हाँ पास्टर मैं बोल सकती हूँ, मैं पुलपिट में खड़ी हूं ना, आराधना कर रही हूं, है ना? क्या चुका रहे हो आप? हाँ, कुछ लोग अभी भी बैठे हुए सोचते कि हम आराधना नाच के नहीं, पाप है आराधना नाच के करना, हाँ पाप है। बाइबल कहता है दाऊद जब नाच रहा था तो उसकी पत्नी ने क्या कहा? शाऊल की बेटी ने कहा तू पागल है। तू क्या है? पागल है। तू राजा का वस्त्र उठा के नीचे फेंक दिया। तू एक राजा है, वो वस्त्र करोड़ों का है, सोना चांदी से बना हुआ है, उसमें सोना चांदी के तारे बुने हुए, और तूने उठा के नीचे फेंक दिया। तू मूर्ख है, तू प्रभु के सामने कैसे नाच रहा है? पता उसने क्या कहा? मैं उसके लिए और मूर्ख बनना चाहता हूं। हालेलुया। मैं और उसके लिए मूर्ख बनना चाहता हूं। और वो उसको गुस्सा करने लगी बालकनी में से खड़े होकर। परमेश्वर ने क्या क्या पता है? जा तू बांझ रहे अभी। वो मरते दम तक बांझ थी, वो मरते दम तक उसको कोई संतान नहीं था, बिना संतान की वो मारी गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और दाऊद ने इतना आराधना किया, राइट, इतना पाप किया, बड़ा बड़ा पाप किया, परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने पाप किया, आपको पता है दाऊद ने पाप किया या नहीं किया? तब उसने बेरशेबा के साथ उसने व्यभिचार भी नहीं किया, वो तब अच्छा इंसान था। और जब उसने पाप किया और उसने क्षमा मांगा, परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना में आपको क्या करना है? पकड़ के नहीं रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन कैसे भी नाचे, अगर आप मजाक उड़ाएंगे, कौन खत्म हो गया बस। उसके बाद आपका क्या होगा मुझे नहीं पता, परमेश्वर जानता है। क्योंकि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों पर प्रसन्न रहता है। क्योंकि वो पवित्र आत्मा को दुखित नहीं कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हैं? प्रसन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को प्रसन्न कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती में, ओ लो यीशु चुप कराओ इनको। यीशु मसीह ने कहा रहने दो उनको, उनको क्या मत करो, छेड़ो मत, उनको क्या मत करो, छेड़ो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब आराधना करते हैं, आराधना दर्शाता है कि मैंने प्रभु को अपने आप को समर्पित कर दिया। लॉर्ड, इट्स एन एक्ट ऑफ सरेंडर। शिवानी हमेशा माइक मुंह पे रहना है, राइट? इट्स एन एक्ट ऑफ, क्या है? इट्स एक्ट ऑफ सरेंडर। और ये एक कार्य है बलिदान का। they were throwing out all their clothes, और उन्होंने अपने सारे कपड़ों वस्त्र को निकाल के वहां फेंक दिए। and it shows that और वो दर्शा रहे थे, Lord we surrender everything,
और प्रभु हम सब कुछ आपको सौंपते I हैं submit everything. और मैं सब कुछ सौंपते हैं। Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's an act of surrender. और उन्हें कार्य में दिखाया अपने आप को सौंपना। आप नाच रहे तो जोकर नहीं है आप। क्या नहीं है? आप नाच रहे तो जोकर नहीं है। आपका नाचना दर्शाता है कि प्रभु मैंने सब कुछ दे दिया आपको। आप ताली बजा रहे हैं जिसका मतलब आप पागल नहीं है। आप बोल रहे परमेश्वर जो कुछ मेरे पास है, जितना ताकत मेरे पास है, मैं सब कुछ आपको दे रहा हूं। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है मैं बलहीन को बलवान करूंगा। ऐसे नहीं घर में बैठकर ऐसे मैं चर्च नहीं आया पास्टर, आज मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं। वो कभी ठीक नहीं होगा। He is not going to be healed. और वो चंगे नहीं होंगे। The person who's sitting at home and just watching from online और जो लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन देख रहे and हैं don't want to come to the church, और वो कलीसिया नहीं आना चाहते, don't want to pay the cost to worship the Lord, और वो प्रभु के समूह का आराधना नहीं करना चाहते, and they want to sit at home, और वो सिर्फ अपने घर में बैठना do you चाहते think that हैं, you will receive healing? क्या आप सोचते हैं आपको वो चंगाई मिलेगी? No. नहीं। Every worship has cost. और हर एक आराधना की एक मूल्य You है have to surrender yourself. और अपने आप को आपको सौंपना होगा। What does it mean by surrendering your life? और इसका अर्थ क्या है अपने जीवन को You're प्रभु को telling God, सौंपना। I am not greater. और आप प्रभु से कह रहे हैं प्रभु मैं महान नहीं You हूँ are greater. और आप महान हैं। Hallelujah. आमेन। प्रभु मैं बड़ा नहीं हूं, आप बड़े हो। जब आप नाचते हैं, ताली बजाते हैं, क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए क्या बोलते हैं आप? मैं बड़ा नहीं हूं। दोबारा बोलो क्या बोलते हैं आप? दोबारा बोलो मैं बड़ा, आप बड़े हो। आराधना जब आप करते हैं प्रभु को बोल रहे आप बड़े हो और मैं क्या हूं? छोटा हूं। हालेलुया। प्रभु को दर्शा दो, प्रभु यू आर द किंग। और वो दर्शाते थे कि प्रभु आप ही राजा हैं। Lord, I lay my life before you. और मैं अपने जीवन को आपके सम्मुख दे देता हूँ। We always talk about Lord, I submit myself. और हम हमेशा कहते हैं प्रभु हम अपने आप को आपको सौंपते हैं। Where is the action? और उसका कार्य किधर है? Where is the action? और वो कार्य किधर है? Your submission needs action. और अपने आप को सौंपने में आपको कार्य में Your दर्शाना है। submission requires action. और अगर आप अपने आप को सौंपते हो तो उसे आपको कार्य में दिखाना Your है। submission requires action. अगर आप अपने आप को सौंपते हो तो उसे आपको कार्य में In the दिखाना Bible है। it is written, और बाइबल में ऐसा लिखा गया है। worship means और आराधना का अर्थ है fell down before the Lord, और प्रभु के सम्मुख अपने आप को सौंप देना, or गिर जाना, in a position where you are laying down and submitting your entire life and into the hands of और God. अपने आप प्रभु के सम्मुख अपने आप को लेट कर अपने आप को प्रभु को सौंप देना है। Praise the Lord. हालेलुया। बहुत लोग आराधना करते समय नीचे गिर के लेट के आराधना करते, अच्छी बात है। That shows that you are surrendering your life. और इसका अर्थ है ये दर्शाता है कि आप अपने आप को प्रभु को आप सौंपते जब हैं। खड़े होकर आराधना करते वो दिखाता है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। Praise the Lord. How much you love the Lord. और आप कितना प्रभु से प्रेम करते How much हैं। you want to submit your life. और आप कितना प्रभु को अपने आप को सौंपना चाहते हैं। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. आमेन। Praise the Lord. हालेलुया। आज क्या हमें पकड़ के रखता परमेश्वर को आराधना करने से रोकता है? What all things which is holding or blocking us to worship Him? और कौन सी चीजें जो हमें रोकती है प्रभु की आराधना करने से? You know, I want to tell you the danger of holding. और मैं आपको yourself. बताना चाहता हूँ कि कितना खतरनाक है किसी See, चीज God को is पकड़े ready to रहना। bless you. और प्रभु तैयार है आपको आशीषित करने God के is लिए। ready to lift you up. और प्रभु तैयार है आपको ऊंचा उठाने के God लिए। is ready to give you abundant blessings. और प्रभु तैयार है आपको बहुत आयत का आशीषित You know, देने के whenever लिए। you dance, you worship the Lord. और जब भी आप आराधना करते हैं, नाचते हैं प्रभु When you के show सम्मुख, your submission through your action. और वो आप दर्शाते हैं कि आप अपने आप को सौंपते अपने कार्य द्वारा। Hallelujah. आमेन। When you worship the Lord through your action, और आप अपने कार्य द्वारा परमेश्वर की you are आराधना करते releasing हैं। God's blessing upon your family. और आप अपने परिवार के ऊपर प्रभु के आशीषों को डाल रहे हैं। Hallelujah. आमेन। You are releasing God's blessing. और आप खोल रहे हैं प्रभु के आशीषों को। When you dance, और जब आप नाचते when you हैं, worship Him, और जब आप आराधना करते when you हैं, worship it through your action, और जब आप आराधना करते हैं अपने कार्य द्वारा, God is opening the heavenly gates. और प्रभु स्वर्ग के द्वार को खोल रहा है आपके God is लिए। releasing all your blessings. और प्रभु खोल रहा है हर एक आशीषों को। God will start lifting you up. और प्रभु आपको ऊंचा उठा रहा है। Hallelujah. आमेन। You cannot receive anything in a closed hand. और आप अपने
अपने बंद हाथ रख के कुछ भी नहीं If प्राप्त कर somebody want to सकते। give you blessing, अगर आपको कोई आशीष देना for चाहता example, है, if I want to give something to Menka, और अगर मैं मेनका को कुछ देना चाहता हूँ, how she will receive it? अब वो कैसे उस चीज को प्राप्त करेगी? You know, she will show her hand. और वो अपने हाथ को आगे करके लेगी। If you hold your hand like this, अगर आप अपने हाथ को बांध कर रख you cannot लेंगे get anything from the Lord. और आपको प्रभु की ओर से कुछ नहीं मिलेगा। Will you get anything? क्या आपको No, मिलेगा? Lord, I am not going to dance. और प्रभु मैं नाचने नहीं No, वाला, Lord, I am not going to sing. और मैं गीत को नहीं गाने वाला। How long you will say that? और कितने लंबे समय तक आप ऐसे How long you करेंगे? will hold your hand like this? और कितने समय तक अपने हाथ को बंद कर कर How रखेंगे? long you will excuse the Lord? और कितने समय तक आप प्रभु के सम्मुख बहाने How long you देंगे? will complain about your situation? और कितने समय तक आप अपने परिस्थिति को रख के परमेश्वर के सम्मुख Oh बोलेंगे? Lord, I am sick. और प्रभु मैं बीमार हूँ। Don't hold your hand like this. और अपने हाथ को ऐसे बांध कर मत रखिए। Release your hand. अपने हाथ को खोल Open your दीजिए। hand. अपने हाथ को खोल दीजिए Open your action. और अपने कार्य को खोल When you दीजिए। will do that, और जब आप ऐसा करेंगे, the blessings of heaven will come upon you. और वो स्वर्ग की आशीष आपके ऊपर आ जाएगी। Hallelujah. आमेन, Hallelujah. आमेन, Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। This is what Bible says. और यही बाइबल कहती है। This is the danger thing what believers do. और यही सबसे खतरनाक चीज है जो अपने विश्वासी हाथ लोग को करते बांध के हैं। रखते, अपने हाथ को बांध के रखते, कहते प्रभु मेरे पास समय नहीं है, हाथ को बांध के रखे। प्रभु मेरे पास ताकत नहीं है, बांध के रखे। कब तक बांध के रखोगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ लोगों से चर्च खत्म होते ही पूछे पास्टर ने क्या प्रचार किया, पता नहीं क्या प्रचार किया, पर उनको देखो तो ऐसे बैठे रहेंगे जैसे वही है, सबसे पढ़े लिखे और सबसे समझदार। ऐसे देखेंगे। हाँ पास्टर, मैं जब कॉलेज में था, ग्रीक सर आते थे हमारे, पास्टर कोशी बेबी करके एक थे, मुझे क्लास के सामने बिठा दिया करते थे और मैं सबसे, हमारा बेंच होता था ऐसे, क्लास का बेंच ऐसा होता था, तो हम सब बैठे रहते थे। और उनकी एक गंदी आदत है, जिनको उन्होंने पकड़ लिया पूरे 3 साल उनको कभी नहीं छोड़ेंगे, हर बात में किस्सा उन्हीं से पूछेंगे। और ये मुझे पता था, क्योंकि हमारे सीनियर्स होते थे, कहते ये पास्टर बड़ा डेंजर है, गलती मत कर देना। तो मैं क्या करता था, जैसे वो क्लास में आते थे मैं ऐसे बैठा रहता था जैसे सब कुछ पता है मुझे, राइट। जैसे ही वो बोर्ड में सवाल लिखते थे मैं एक्टिंग ऐसा करता था, मुझे आता है, आई नो, हाथ ऐसे से उठाता था। और वो कहते थे अरे नहीं तुझे आता है। मुझे पता था ऐसे हाथ उठाऊंगा या मैं ऐसे से करूंगा, करूंगा, पेपर लेके लिखूंगा, बोलेगा तुरंत नहीं इससे नहीं पूछना, इसको आता है। तो ऐसे पूरा साल निकाल लिया मैंने, पूरा साल एक्टिंग करके निकाला अच्छी तरीके से। एग्जाम आया, 100 का 60 मार्क लेके आना है और उनको पता था कि मैं 80-90 लेके आऊंगा, पर जैसे ही रिजल्ट आया तो सिर्फ 60 मार्क लेके आया। तू तो इतना अच्छा पढ़ता था। मैं उनको कैसे बताता, एक्टिंग किया ताकि मैं डांट ना खाऊं। क्लास में डांट भी खाते ना टीचर, एक्टिंग नहीं करूंगा तो डांट खाऊंगा, एक्टिंग नहीं करूंगा तो हर क्लास में मुझे ही खड़ा करेंगे, सवाल पूछेंगे। कुछ विश्वासी भी ऐसे ही हैं, जैसे पास्टर मुझे देखते हैं, अभी पूछा सवाल 66 किताब का 66 किताब बता दूंगा मैं। जैसे प्रचार खत्म होके पूछो क्या बताया, कुछ तो बोला था आपने, मुझे को समझ तो आया था पर क्या करूं, थोड़ा बीमार हूं, तभी बीमारी याद आएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, कुछ बहनों को नोट कर रहा हूं, भाई और बहनों को, अभी खत्म होते आप ही के पास आने वाला हूं। नहीं बोल पाओगे तो पूरे दिन आज यहीं बैठोगे, जब तक प्रचार नहीं बताओगे यहां से नहीं जाने वाले आप। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, अब समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक्टिंग मत करो, यही आपको नरक लेके जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसलिए मैंने कहा दिस इज वेरी डेंजर, और ये बहुत खतरनाक है। डोंट एक्ट बिफोर अस। और प्रभु के हमारे सम्मुख नाटक मत कीजिए। द वन हु हैज क्रिएटेड ही नोज व्हाट यू आर डूइंग। और जिसने आपको बनाया वो जानता है आप क्या कर रहे इफ यू हैं। वांट टू गो इन नेक्स्ट लेवल, अगर आपको और दूसरे पड़ाव में जाना you है, have to release everything what you are holding. और आपको वो सब को छोड़ देना जिसको आप पकड़े रखे हुए हैं। कितने लोग को लगता है कि प्रभु मेरे, कभी कभार आपको महसूस होता है जब
I want to tell you, there are some signs where you can identify that you are under the influence of devil. और बहुत सी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सी साइंस की ऐसी चीज है जिसमें आप बता सकते हैं कि आप अभी भी शैतान के अंदर चल रहे हैं। गलत ट्रांसलेट कर रही है। ऐसे बहुत से चिन्ह हैं जिसमें आप पता चल जाएगा आप शैतान के पकड़ में हैं। क्या है? शैतान के, किसके पकड़ में है? आप जानना चाहते हैं कि आपको कैसे पता आप शैतान के पकड़ में है या नहीं? हाउ विल यू वांट टू नो? और आप जानना चाहते हैं कैसे? सबसे पहले वो इंसान कितना भी आराधना करो ऐसे ही रहेगा। आत्मिक सूखापन, जिसका आत्मा में कोई गीलापन है ही नहीं, वो आदमी आराधना कर ही नहीं सकता। Praise the Lord। आत्मा में क्या है? वो सूखा है, स्पिरिचुअल ड्राइनेस। प्रार्थना नहीं कर पा रहा मैं, भाई पढ़ता हूं समझ नहीं आता, बाइबल 10 बार खत्म कर दिया फिर भी समझ नहीं आता। दो चैप्टर पढ़ता हूं फिर अगली बार 1 घंटा 2 घंटा सोता हूं। गाना सुनता हूं पकड़ नहीं पाता है। क्या क्या नहीं कर पाता है ना? कितना भी समझाओ मैं ऐसे ही रहूंगा। पास्टर मैं देख रहा हूं, मुझे पता आप मेरे बारे में ही बोल रहे हो। कितना भी उसको समझा लो, मेरे सिर में से खून निकल आता है पर उनके सिर कभी। बोलो भैया पियो मत, बोलो बोलो। वो व्यक्ति आत्मिक सूखापन में, सोच लेना पत्ता झड़ गया उसका। क्या हो गया उसका? पतझड़ आ गया। वो सूखा ऐसे ही खड़ा रहेगा, ऐसे अकड़ के ही रहेगा। देखा ना, जिस पेड़ पे पत्ता होता है वो अकड़ के खड़ा नहीं रहता है कि नहीं? आपने नोट किया है? जिस पेड़ में पत्ता होता है वो हवा आते क्या करेगा? ऐसे ऐसे से हिलेगा। और जिस पेड़ में पत्ता नहीं है वो कैसे रहेगा? तूफान भी आ जाए ऐसे ही खड़ा रहेगा। कुछ लोग ऐसे ही आदमियों में कुछ भी बोल रहे, भाई मैं अकड़ के, मेरा अकड़ बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सोच लेना, उसको देख के बोल देना हिल नहीं रहा, ये हो गया, कुलाड़ी आ गया उसके काटने के लिए। गिरने वाला पता नहीं किस दिन कोई उखाड़ कर जलाएगा। आप समझ पा रहे मैं कहना चाह रहा हूं? जो व्यक्ति हिल नहीं रहा, बाइबल क्या कहता है? धर्मी जन ऐसे नहीं है, वो अपने ऋतु में फलेंगे, उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। राइट? पर दुष्ट ऐसे नहीं है, वो सूखे भूसे के समान है, जो क्या होंगे? हवा में क्या हो जाएगा? टाइम आ गया भैया। जो बहने भाई खड़े हुए ऐसे ही, हम ऐसे ही रहेंगे, मैं गाली दूंगा, मैं शराब पीऊंगा, टाइम आ गया। खड़े रहो जब तक खड़ा है। जब आग लगेगा यही पेड़ सबसे पहले जलेगा, है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा अभी मेरे जीवन में अभी भी बंधन है, आराधना नहीं कर पा रहे हैं? उनके जीवन में लगातार क्या रहेगा? हमेशा उनके जीवन में उथल पुथल रहेगा। हर एक प्रॉब्लम खत्म हुआ दूसरा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम खत्म हुआ दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, उनके जीवन में शांति नहीं होगा, रात में सो नहीं पाएगा, बीपी बढ़ा रहेगा। क्या होगा? कल क्या होगा? कल क्या होगा? कल क्या होगा? कैसे होगा? पर वचन कहता है भजन संहिता 127 में, वो अपने प्रियो को यूं ही नींद दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज होने दीजिए, पवित्र आत्मा को कार्य करने दीजिए। घर जाके करना क्या है? कितने लोग को काम पे जाना है? किसी को काम पे जाना है? ब्रदर को जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सब घर पे ही रहना, घर जाके कुछ करना ही नहीं। आईपीएल शुरू हो गया है, टीवी ऑन करके देख लेंगे। हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 चीज काफी है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलना चाहता। ये 3 चीज काफी है। यही दिख जाएगा आपके कितना आत्मा में बड़े हो, आप कितना बंधन में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मन फिराओ, परमेश्वर से क्षमा मांगो। लॉर्ड फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर,
परमेश्वर से बोलो, प्रभु मैं सब कुछ समर्पित कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सब कुछ। मुझे ये ड्राइनेस नहीं चाहिए, मुझे ये सूखापन नहीं चाहिए। प्रभु आज के बाद मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा। क्या करूंगा आज के बाद? तेरी आज्ञा को। मैं किसी भी बात से नहीं डरूंगा। प्रभु मेरे डर को विश्वास में बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज मेरे मन को बदल दे। रिन्यू माय माइंड, मेरे मन को नया कर दे। रिन्यू माय माइंड लॉर्ड। और मेरे मन को नया कर दे। टेल गॉड, लॉर्ड बिल्ड माय स्ट्रांग प्रेयर लाइफ। और प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे प्रार्थना जीवन को आप सामर्थ्य से भरिए। डोंट ड्वेल ऑन योर पास्ट। और आप अपने भूतकाल में, अपने इतिहास में मोस्ट ही ऑफ द मत बने पीपल दे रहिए। ड्वेल ऑन देयर पास्ट। और बहुत से लोग जो है अपने भूतकाल में ही बने रहते समटाइम दे हैं। लिव ऑन देयर गिल्ट ऑफ सिन। और वो हमेशा उस अपराध में रहते हैं, वो सोचते रहते, विचार में रहते कि मैंने ये पाप किया है। See, this guilt of sin is very dangerous. और जो ये गिल्ट है, जो आपके पाप का जो है वो घृणा, घृणा क्या है? घृणा। इतने दिन से गिल्ट बोल रहे बेटा, कल से बोले जा रहा हूं। एक बार भी चेक कर ला करो। अच्छा अनुवादक को होना चाहिए कि तैयार रहना चाहिए। गिल्ट ऑफ सिन। और जो आपके अंदर घृणा है उस पाप को लेके, Oh Lord, I committed this sin. और प्रभु मैंने ये पाप कर दिया है What people परमेश्वर। will think about me? और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? What people will say about me? और लोग मेरे बारे में अब क्या कहेंगे? Look at Mary, Mary. और आप मरियम की ओर देखिए, You know, the sister of Lazarus. और लाजर की बहन, You know, she was committed some sin. और उसने कुछ पाप किया था। And everybody knows that she is a sinner. और वो सब जानते थे कि वो एक पापी स्त्री है। But when she came to Jesus, और जब वह यीशु के पास आई, she came with a cost. और वो एक कीमत को, एक मूल्य को लेकर She आई। brought a myrrh, और वो एक सबसे बहुमूल्य इत्र खरीद कर आई। very costly perfume. और बहुत बहुमूल्य इत्र को, It is coster than what she can earn throughout her life. और पूरे जीवन शैली में वो जितना कमा सकती थी उतना महंगा बहुमूल्य वो इत्र लेकर And she आई। poured that perfume in the feet of Jesus. और उसने वो बहुमूल्य इत्र वो प्रभु यीशु के पैरों में लगाए। And everybody was saying, hey, this Mary is fool. और सब कहने लगे कि ये स्त्री जो है वो मूर्ख है। Oh, she has spoiled all the perfume. और उसने पूरे जो इत्र को खराब कर दिया But है। what Bible says, और पर बाइबल क्या कहती है? God saw her act of submission. और प्रभु ने उसके कार्य को देखा, उसने जिस तरीके से अपने आप को प्रभु को सौंपा। God saw that she is submitted to me. और प्रभु ने देखा कि उसने आप को प्रभु को सौंप दिया है। God saw her cost of worship. और प्रभु ने देखा उसके मूल्य को, उसके आराधना के मूल्य को। And what God said, और प्रभु ने क्या कहा? everybody was mocking at her. और सब लोग उसको ताड़ना दे रहे थे, उसको Everybody मजाक saying उड़ा she is रहे a थे। foolish woman. और सब कह रहे थे कि ये बेवकूफ औरत She is है a sinner. और एक ये पापी स्त्री है। How can she come and touch the feet of Jesus? और वो कैसे आके प्रभु यीशु के पैरों को छू सकती है? Even the disciple, they didn't want her to touch the feet of Jesus. और चेलों ने भी उसको बोला कि तू प्रभु यीशु के पैरों को मत छू। One of the disciples said, stop, don't do this, Mary. और एक ने तो बोला कि रुक जा मरियम, उसे छू मत। You know what Jesus said? और आपको पता है Let यीशु her ने do क्या what कहा? she's doing. और उसे छोड़ दो, वो जो कर रही है उसे करने दो। Praise the Lord. हालेलुया। And you know what Bible says? और आपको पता है बाइबल क्या कहती She है? was crying at the feet of Jesus. और वो प्रभु यीशु के पैरों में You रोने know, लगी। sometimes when you cry in the worship, और जब आप आराधना में रोते हैं, it is also an act of worship. और वो भी एक आराधना करने का It is a तरीका part है। of worship. और वो आराधना करने का एक भाग है। Sometimes when you cry and shout before the Lord, और जब आप प्रभु के सम्मुख रोते और चिल्लाते हैं, you know, that shows that you are submitting your life to the Lord. और इसका अर्थ यह है कि आप अपने आप को प्रभु के सम्मुख सौंप रहे हैं। This Mary, she was crying, shedding her tears. और ये मरियम जो थी वो प्रभु के सम्मुख रो रही थी। And she saw that all the tears were in the feet of Jesus. और उसके सारे जो आंसू थे वो प्रभु यीशु के पैरों में गिर She रहे wanted थे। to wipe it. और वो उसे पोंछना चाहती She थी। don't know how to use cloth. और वो ये नहीं जानती थी कि वो अपने कपड़ों को कैसे उपयोग She wanted करे। to give best for Jesus. और वो सबसे उत्तम प्रभु को देना चाहती So थी। she immediately opened her hair. और तुरंत उसने अपने बालों को खोल दिया। Because the hair is the very costliest part of the body of every female. और जो बहुमूल्य चीज है सबसे स्त्रियों के शरीर में वो है उनके बाल। And she opened her hair. और उसने अपने बाल को खोल दिया। Everybody could see she had a long hair. और सब कोई देख पा रहे थे उसके लंबे बाल हैं। And she was so beautiful. और उसके बाल बहुत
सुंदर है। Even Lazarus' brother looking at her sister. और लाजर भी अपनी बहन की ओर देख रहा है। What Mary is doing. और मरियम क्या कर रही Even है? Elizabeth also, she's even the Martha also looking at her. और मार्था भी उसकी ओर देख रही है। What she is doing और वो क्या कर रही है? with her hair. और वो अपने बालों के साथ She started wiping the feet of Jesus. और वो प्रभु यीशु के पैरों को पोंछने लगी। She was slowly wiping. और वो आराम से पोंछने लगी। She was cleaning the feet of Jesus. और वो प्रभु यीशु के पैरों को See, अच्छे से that's what I पोंछने told you. लगी। Every worship has cost. और इसलिए मैंने कहा कि हर एक आराधना का एक मूल्य As है। she started wiping the feet of Jesus, और जैसे वो प्रभु यीशु के पैरों को पोंछने लगी, her sin also forgiven. और उसके पाप भी क्षमा हो गए। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Look at the way she worshiped the Lord. और देखिए कि वो किस तरीके से प्रभु की आराधना कर रही Through है। her tears, और वो अपने आंसू के through साथ, her hair, अपने बालों के with साथ, whole body. और पूरे शरीर के Even साथ, she spent all her money. और उसने अपने पूरे पैसे भी खर्च कर दिए, She worshiped the Lord. और उसने प्रभु की आराधना करी। And she was under the bondage of sin. और वो उस पाप के बंधक में बंधी हुई थी। Nobody knows about it. और कोई भी उसके बारे में Maybe नहीं some जानता people था। they know about her. और कुछ लोग उसके बारे में जानते होंगे। Maybe a brother and sister they doesn't know. और शायद उसके भाई बहन भी नहीं जानते Maybe होंगे। Lazarus doesn't know that she is a sinner. और शायद लाजर को भी नहीं पता होगा कि वो पापी है। Maybe Martha doesn't know that she is a sinner. और मार्था नहीं जानती होगी कि वो एक पापी है। As she was worshiping the Lord with और her जैसे hair, वो प्रभु की आराधना कर रही थी, Jesus said, और प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, "My daughter, मेरी प्रिय पुत्री, I know why you are doing this. और मैं जानता हूँ तू ये क्यों कर रही है। I know that you are a sinner. और मैं जानता हूँ कि तू पापी है। I know that why you have spent your money to come and worship me. और मैं जानता हूँ कि तूने अपने पैसों को क्यों खर्च करा है मेरी Today, आराधना if you have करने के spent लिए। money to come to the church, और तूने आज पैसे खर्च करे यहाँ कलीसिया you आने have के लिए, paid money for rickshaw, और तूने पैसे दिए हैं you रिक्शा have के paid लिए, money for your scooty, और तूने स्कूटी के लिए पैसे दिए हैं, you paid money for Uber. और तूने उबर के लिए पैसे दिए हैं, This will never go vain, brother. और वो कभी व्यर्थ में नहीं जाएगा। Whatever you are spending for God, और जो कुछ भी आप प्रभु के लिए खर्चा you कर will रहे हैं, receive double portion of और blessing. आप उसका दुगना भाग काटेंगे। This Mary, और ये जो मरियम है, she came to Jesus और वो प्रभु यीशु के पास with आई, all her saving, और अपने पूरे पैसे जो उसने बचा रखे थे, just kept it at the feet of Jesus. और उसने प्रभु यीशु के चरणों के Jesus पास said, रख दिए, और उसने कहा, यीशु, Mary, और यीशु ने कहा, मरियम, now you are no more sinner. और तू अब और पापी नहीं है, You are no more sinner. और तू पापी नहीं रही, You have paid your cost. और तूने अपने मूल्य को चुका दिया You है, have paid your cost of worship. और तूने अपने आराधना के मूल्य को You चुका दिया have है, paid your body as a cost. और तूने अपने शरीर को एक मूल्य Your दिया, worship showed that you are submitting your life to me. और तेरी आराधना ने दर्शा दिया कि तूने अपने जीवन को मुझे सौंप दिया है। And you know what happened now? और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? God said, और प्रभु ने कहा, your sin is forgiven. और तेरे पाप क्षमा हो गए, And now she become a child of God. और वो अब प्रभु की संतान बन गई। Hallelujah. आमेन। This morning, और आज की सुबह, once your sin is forgiven, और जैसे आपके पाप क्षमा हो गए, the day when Mary got to know that her sin is forgiven, और जिस दिन मरियम को पता चला कि उसके पाप क्षमा हो गए, and she know और वह जानती the थी, importance of feet of Jesus. और वह जानती थी कि प्रभु यीशु के चरणों का महत्व, Whenever Jesus come to her house, और जब भी प्रभु यीशु इसके घर में आए, she immediately go and sit at the feet of Jesus. और वो सीधा जाके उसके चरणों में बैठ जाती थी, She always tell Jesus, speak to me. और वो कहती थी उसके चरणों के पास बैठ के कि प्रभु मेरे से बातें कर, Speak to me, Jesus. और मुझसे बातें कर You यीशु। know what does it mean? और इसका Sitting अर्थ- at the feet of Jesus? और प्रभु यीशु के चरणों में बैठने का अर्थ क्या है? Spend time in prayer. और उसके प्रार्थना के साथ समय व्यतीत करना, Spend time in prayer. प्रार्थना में समय व्यतीत करना, Spend time in reading word of God. और प्रभु के वचन में पढ़ने में समय व्यतीत Spend करना, time to come church. और कलीसिया में आने में समय व्यतीत करना, Spend time to worship the Lord. और प्रभु की आराधना में समय व्यतीत करना, Spend time to worship His glorious name. और उसके नाम की महिमा करने में समय व्यतीत करना। Praise the Lord. हालेलुया। And suddenly there was bad news. और वहाँ पे एक बुरी खबर आई, Mary's brother Lazarus expired. और मरियम का भाई लाजर वो मर गया।
But Jesus came, और पर यीशु आया did miracle in the life of Mary. और मरियम के जीवन में एक चमत्कार किया. Praise the Lord. हालेलुया. And the Bible says, और बाइबल कहती है the day of Pentecost, और पेंटिकोस के दिन में 120 disciples were और there. 120 चेले Among that 120 disciples, और 120 चेलों से भी ज्यादा among the 120 disciples, और 120 चेलों में से एक she also one of them. और उनमें से एक वो मरियम भी थी She received the power of the Holy Ghost. और उसे वो पवित्र आत्मा की सामर्थ प्राप्त हुई. Hallelujah. आमीन. No matter what sin you have committed, और चाहे आपने जो पाप किया हो, if you are at the feet of Jesus, अगर आप प्रभु यीशु के चरणों पर हैं He is ready to forgive you. और वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार है And you will become a child of God. और फिर आप प्रभु के संतान बन Don't जाएंगे. dwell in the guilt of sin. और आप उस पाप के उस गिल्ट में मत जाइए. For your past sin, और अपने वो भूतकाल के पाप के for your लिए present sin, और अभी के पाप के लिए your future sin. और आने वाले पापों के लिए भी. 2000 years ago, और 2 साल पहले He paid the cost. और उसने उस मूल्य को चुका दिया है. Hallelujah. आमीन. He paid the cost. और उसने उस मूल्य को चुका दिया है. Praise the Lord. हालेलुया. One thing you do, और आपको सिर्फ एक चीज करना है say, Lord, forgive me. और कहना है प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए. Lord, you forgive me. और प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए. And you are cleansed like you will be white as white as snow. और आप लिंग के हिम हिम के श्वेत के समान बन जाएंगे. हिम के समान बन जाएंगे. हालेलुया. आमीन. आप जानते हैं मैं अमेरिका गया था. मैं वहां गया हुआ था बर्फ में. इतना सुंदर बर्फ था. मैंने पहली बार इतना बर्फ देखा. आई सॉ फर्स्ट टाइम. मुझे लगा, मैं गया नहीं, मैं बर्फ में कदम भी नहीं रखा. मेरे को बहुत ठंड लग रहा था क्योंकि उसका इफेक्ट आज भी मेरे शरीर में कोल्ड के रूप में. वो इतना अच्छा लग रहा था देखने में. एक समय आया, वी वर कमिंग ऑल द फ्रॉम इंडियानापोलिस. और हम इंडियानापोलिस से यहाँ जब आ रहे थे, इट वाज अराउंड 7 o'clock. और कुछ 7 बज रहे था. The place was full of dark. और वो जो स्थान था वो पूरा अंधकार से भरा हुआ था. No अंधेरा हो रखा sun, था. no sun. और वहाँ पे सूरज नहीं था. There is no stars. और कोई सितारे नहीं Even थे. there is no street light. और वहाँ पे सड़क में भी रोशनी नहीं थी. पर वो पूरा जगह ऐसा लग रहा था दोपहर के 4 बजे, शाम के 4 बज रहे थे. मैंने कृषि से बार बार पूछा, टाइम क्या हुआ? उसने कहा 7 बज रहे. मैंने कहा अंधेरा नहीं हुआ? तो उसने कहा अंधेरा है. मैंने बोला नहीं है. उसने कहा अंधेरा है. रात के 8 बज गए. मैंने कहा कृषि अंधेरा नहीं हुआ? नहीं अंधेरा है. आपको पता है क्यों अंधेरा नहीं था? क्योंकि उस बर्फ का जो सफेदपन इतना गहरा था कि अंधेरे को भी पृथ्वी पर आने नहीं दिया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. उस बर्फ का वो जो श्वेतपन इतना था कि अंधेरे को भी उस अंधेरेपन को प्रभुता करने नहीं दिया. हालेलुया. That's what God says. God is light. और इसलिए प्रभु कहते हैं कि प्रभु वो ज्योति है. If that light is in you, अगर वो ज्योति आपके अंदर है, this dark cannot have authority over you. और वो अंधकार के पास कोई अधिकार नहीं होगा आपके जीवन के ऊपर. It cannot have an authority to enter into your life. और उसके पास कोई अधिकार नहीं होगा आपके जीवन के अंदर आने के लिए. Praise the Lord. Have this light. और उस ज्योति को आप ले लीजिए. The whole till 9 o'clock. I couldn't see any darkness. और 9 बजे तक मैं कोई भी अंधकार को नहीं देख पा There रहा was था. no light. और वहाँ पे कोई रोशनी भी नहीं But थी. I could see the trees, the house, everything I could see. और तब भी मैं वहाँ पे घरों को, पेड़ों को, हर चीज को देख पा रहा Because था. of that snow reflection, और उस बर्फ के रिफ्लेक्शन के वजह से all the place become white. और वो पूरा जगह सफेद हो गया, वो ज्योति में आ गया. Praise the Lord. हालेलुया. Think about it. और आप उसके बारे में It सोच was कर so देखिए. beautiful. और वो बहुत सुंदर था. And you know what happened? और आपको पता है फिर क्या हुआ? That snow started sparkling. और वहाँ पे एक स्पार्क आने लगा. Snow started sparkling. और जो बर्फ थी, You know, बर्फ चमकने लगी. मैं देख रहा हूँ तारों के समान बर्फ चमक रही है. Praise the Lord. I want to tell you, my dear brothers and sisters. और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय इसलिए भाई बाइबल में बहनों, लिखा हुआ है, तुम्हारे पाप को मैं शुद्ध करके तुम्हें हिम के नाई श्वेत कर दूंगा.
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में. हम सब खड़े हो जाएंगे. हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं प्रभु की उपस्थिति में. अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करिए. Lift up your hands. We are going to pray. We are going to pray. Lift up your hands. Lift up your hands. आइए हम Hallelujah. अपने हाथों को उठा लेंगे प्रभु Lift के up your सामने. hands. अपने हाथों को उठा लेंगे Ask forgiveness. और प्रभु से क्षमा मांगेंगे. Lord, forgive my sin. और प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए. Lord, forgive my sin. और मेरे पापों को क्षमा कीजिए. Lord, forgive my sin. और मेरे पापों को क्षमा कीजिए. Lord, forgive my sin. और मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु. Just submit your life. और अपने जीवन को सौंप दीजिए. Submit your life. अपने जीवन को सौंप दीजिए. Submit your life. अपने जीवन को सौंप He's दीजिए. ready to forgive you. और वो आपको क्षमा करने के लिए He's तैयार ready है. to cleanse you. और वो आपको शुद्ध करने के लिए तैयार He's है. ready to cleanse you. और वो आपको पवित्र करने के लिए तैयार है. Oh, Lord is with you. और वो प्रभु आपके साथ है. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.